بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. مجھے گائز پلیز بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو وائس آ رہی ہے یا نہیں آ رہی. لیٹ می نو اف یو کین لسن ٹو دا وائس. میں بس آپ کے کچھ کامنٹس دیکھ لوں. اچھا ٹھیک ہے, آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو, دیٹس گڈ. تو ہم تھوڑا سا انتظار کر لیتے ہیں. مین وائل کچھ چیزیں میں نے آپ لوگوں کے کامنٹس میں پڑھی تھیں, باقی اتنی دیر میں باقی سب لوگ بھی جوائن کر لیتے ہیں. تھوڑا سا لائیو ہمارا بریک ہو گیا تھا بیچ میں, جس کی وجہ سے آپ کا جو لنک پہلے میں نے آپ کو شیئر کیا تھا, تو اب یہ نیا لنک ہم نے کریٹ کیا. ٹھیک ہے, اچھا ٹھیک ہے. اچھا, پچھلا جو سیشن تھا ہمارا اس میں ہم نے جو شاپیفائی تھا, شاپیفائی کو ہم نے ڈسکس کیا تھا. ٹھیک ہے, اور میں نے جو ہے وہ شاپیفائی کا تھوڑا سا آپ لوگوں کو ڈیمو دیا تھا کہ کس طریقے سے شاپیفائی کی جو ویب سائٹس ہوتی ہیں وہ بنائی جاتی ہیں, اور جو ایک نوشن یا ایک جو سوچ یا ایک خیال جو بہت زیادہ لوگوں کے اندر میں ذہنوں میں ہوتا ہے کہ شاپیفائی کے اوپر شاید کوئی کوڈنگ کرنی پڑتی ہے, ویب سائٹ بنانا تو بڑا کوئی مشکل کام ہے. لیکن یقیناً طور پہ کچھ آپ کے سوالات ہوں گے اس حوالے سے بھی, اور ان سوالات کے انشاءاللہ جوابات بھی دیں گے. لیکن ایک جو اندازہ جو آپ لوگوں کو کل کی کلاس سے ہوا وہ یہ ہے کہ ویب سائٹ بنانا کوئی اتنا مشکل کام بھی نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ شاپیفائی کا صرف اکاؤنٹ بنایا جاتا ہے, اور اس اب جو شاپیفائی کا جو لنک ہے مجھے پتہ ہے میں نے ابھی تک چینل میں شیئر نہیں کیا, وہ میں کر دوں گا, پریشان نہ ہوں آپ لوگ. تو واٹس ایپ کے اوپر جب وہ شیئر ہو جائے گا تو آپ لوگوں نے شاپیفائی کا سمپلی اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہے, اور اکاؤنٹ کریٹ کرنے کے بعد آپ لوگوں نے تھیم فورسٹ پہ جا کے کوئی نہ کوئی اچھا سا تھیم ڈھونڈنا ہے, اور وہ تھیم کا لنک جو ہم آپ کو ایک فارم شیئر کریں گے آپ کے ساتھ, جو ابھی تک ہم نے نہیں کیا لیکن ہم آپ کے ساتھ کریں گے. تو آپ اس فارم کو فل کریں گے تو ہم آپ کو وہ پیڈ تھیم آپ کو فری آف کاسٹ, آپ کو مفت آپ کو انشاءاللہ مہیا کر دیں گے. آپ لوگ اس تھیم کو اٹھا کے اپنی پوری ویب سائٹ بنا لو,
اور اس کی پوری کسٹمائزیشن آپ نے پھر دیکھی تھی کہ تھیم کو انسٹال کرنا کتنا آسان کام ہے. ہاں تھوڑے سے بٹنز دیکھنے پڑتے ہیں, کہاں پہ کلک کرنا ہے, کدھر کیا کرنا ہے. ایک دو دفعہ 2-3 دفعہ پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کا ہو جائے گا, اور پھر ہم ویب سائٹس بنانا سیکھیں گے. اور میں انشاءاللہ اس کے اوپر ہم پورا ایک تفصیلی ہم پوری ورک شاپ بھی کریں گے, اور اس کے اوپر جب ہم 2-3 دفعہ یا 3-4 دفعہ یا 5-6 دفعہ جب مختلف قسم کی ویب سائٹس, فار ایگزامپل جیولری کی ویب سائٹ, کاسمیٹکس کی ویب سائٹ, الیکٹرانکس کی ویب سائٹ, یا شوز کی ویب سائٹ, یا کپڑوں کی ویب سائٹ, ڈفرینٹ ویب سائٹس ایک ایک دفعہ بنا کے دیکھیں گے تو یہ ساری چیزیں آپ کو ازبر ہو جائیں گی, ساری چیزیں آپ کو یاد ہو جائیں گی. اور پھر ہم نے فری لانسنگ ویب سائٹ جو فائور تھی اس پہ بھی جا کے دیکھا کہ لوگ کس طریقے سے 25-26-27 ہزار سے لے کے پھر 50,000 اور 50,000 سے 1 لاکھ اور 1.5 لاکھ تک ویب سائٹس کا چارج کر رہے تھے. اور جو فری لانسنگ کے جو ریٹس ہوتے ہیں وہ باہر جو ریٹ ہوتے ہیں, جو عام جو سروس پرووائڈر ہوتا ہے جس طرح کہ آپ لوگ ہوں گے, ان سے کم ہوتا ہے فری لانسر کا ریٹ ہمیشہ. ٹھیک ہے, فری لانسر ہمیشہ چیز مارکیٹ سے سستے میں چیز بنا کے دے رہا ہوتا ہے. تو اس سے بھی آپ اندازہ لگا لیں کہ شاپیفائی کی ویب سائٹ کی کتنی ڈیمانڈ ہے. اور ہم نے صرف 2-3 فری لانسرز کو اوپن کر کے دیکھا تھا, اور اس میں بھی ہر کسی کے پاس کوئی نہ کوئی آرڈر تھا. تو بات یہ ہے کہ جس طرح آپ کو بتایا تھا ہمارے گیسٹس نے کہ جو بزنس ہوتا ہے وہ سب سے فرسٹ لیئر پہ ہوتا ہے, سب سے ٹاپ پہ ہوتا ہے. جو بزنس ہوتا ہے اسی کی وجہ سے فری لانسرز کماتے ہیں, اسی کی وجہ سے یوٹیوب فیس بک چلتا ہے, اسی کی وجہ سے گورنمنٹس چلتی ہیں, اسی کی وجہ سے ٹیکس والا سسٹم چلتا ہے. تو یہ بیسیکلی جو بزنسز ہوتے ہیں ان کی وجہ سے یہ سارا کام چل رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو ہر آنے والا جو بزنس ہے اس کو شاپیفائی کی ویب سائٹ چاہیے, اس کو سوشل میڈیا مارکیٹنگ کے سروسز چاہیے. تو اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے, اب آج کی کلاس میں ہم انشاءاللہ تھوڑی سی ای کامرس کی مزید آگے چیزیں ڈسکس کریں گے. لیکن جو ہماری اپنا کماؤ کی ایک فیملی ہے, جس فیملی کا آپ لوگ ایک پارٹ ہیں اور آپ سب معزز لوگ اس کا ایک حصہ ہیں اس فیملی کا, اب اس کے توسط سے انشاءاللہ آخر میں تابش بھائی بھی ہمارے ساتھ بات کریں گے اور ہم اگلے نیکسٹ سٹیپس بھی ڈسکس کریں گے. تو اب اس فیملی کو ہم نے آگے لے کے چلنا ہے. ٹھیک ہے, آپ میں سے کئی لوگوں کے پاس لیپ ٹاپ نہیں ہوگا, آپ میں سے کئی لوگوں کے پاس وسائل نہیں ہوں گے, آپ میں سے کئی لوگ اس وقت کام کرنا چاہ رہے ہیں, کئی لوگوں کو سمجھ نہیں ہوگی کئی چیزوں کی. لیکن ایک سٹارٹ ہو گیا ہمارا, ایک شروعات ہو چکی ہے ہماری, اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ شروعات اور یہ سٹارٹ, اور اگر آپ یہ والی کلاس لے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ واقعتاً ایک تبدیلی چاہتے ہیں, آپ واقعتاً اپنی زندگی کو ٹرانسفارم کرنا چاہتے ہیں, آپ واقعتاً اپنے اوپر اعتماد رکھتے ہیں. تو انشاءاللہ اس میں ہم آپ کی بھرپور ہیلپ کریں گے. ہم آپ کی کنسلٹیشن بھی کریں گے, ہم آپ کی کوئی بھی آئیڈیاز ہیں اس کے اوپر آپ کی معاونت بھی کریں گے. تو اس کا پورا ایک سسٹم ہم بنائیں گے کہ آپ مثال کے طور پہ میرے ساتھ اور میری ٹیم کے ساتھ آپ اگر 1-on-1 سیشن کرنا چاہتے ہیں, کنسلٹیشن کرنا چاہتے ہیں, مشاورت کرنا چاہتے ہیں, آپ کو کوئی بزنس آئیڈیا آپ اس بارے میں تفصیلی ڈسکس کرنا چاہتے ہیں, تو انشاءاللہ ہم 30 منٹس کے سیشن کیا کریں گے ہر ایک کے ساتھ. ٹھیک ہے, تو اس کا ایک ہم فارم بنائیں گے. تو میں چاہوں گا کہ آپ لوگ اس سیشن کو بک کریں. ٹھیک ہے, اور اس کے اندر ہم انشاءاللہ آپ لوگوں کی پوری پلاننگ, آپ لوگوں کے سوالات, آپ لوگ کسی والے سے کنفیوزڈ ہیں, آپ کو سمجھ نہیں آ رہی آپ کو نیکسٹ کیا کرنا چاہیے, یا آپ کوئی بزنس آئیڈیا سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں لیکن آپ کو اس میں اندر کوئی ابہام ہے, کوئی بھی اس طرح کا مسئلہ ہے, تو وہ انشاءاللہ ہم اس میں ڈسکس کریں گے اور آپ کے لیے پورا ایک سسٹم ہم بنائیں گے, روڈ میپ بنائیں گے. اور پھر اپنا کماؤ کی کمیونٹی سے ہم 2-2 دن کی, 3-3 دن کی, 7-7 دن کی, 14-14 دن کی, 1-1 مہینے کے, 3-3 مہینے کے کورسز بھی انشاءاللہ فری آف کاسٹ لانچ کریں گے. اور ایسے کورسز جو وہ لوگ آپ کو آ کے پڑھائیں گے انشاءاللہ, کہ ان لوگوں کا اپنا ایک نام ہوگا, اور وہ ایسی چیزیں آپ کو آ کے پڑھائیں گے کہ مارکیٹ کے اندر وہ چیزیں ہزاروں روپے کی, ایون کہ لاکھوں روپے کی سیل ہو رہی ہیں, لوگ بیچ رہے ہیں وہ سکل سکھانے کے لیے. تو انشاءاللہ یہ ہمارا آپ کے ساتھ وعدہ ہے. ٹھیک ہے, کہ آپ کو سکل انشاءاللہ وہ سکھائیں گے جو مارکیٹ کے حساب سے ہوگا. کوئی یہ نہیں سوال آ کے اٹھا سکتا کہ سر یہ آپ فضول چیزیں سکھا رہے ہیں, یا آپ اس کا سکھانے کا طریقہ ٹھیک نہیں ہے, یا جو چیزیں آپ سکھا رہے ہیں یہ پرانی ہو چکی ہیں. یہ کوئی آ کے نہیں کہہ سکے گا انشاءاللہ. تو آپ لوگوں کو کوئی پیسے نہیں لگیں گے صبا. ٹھیک ہے, کوئی پیسے نہیں لیں گے ہم انشاءاللہ. اگر ہم بھی اسی صف میں جا کے کھڑے ہو جائیں گے تو پھر فائدہ تو نہیں ہے نا ان ساری چیزوں کا. تو بہرحال انشاءاللہ آج کے سیشن میں میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ایک کیس سٹڈی بھی رکھنی ہے, اور ہم نے ایک اسپیشل گیسٹ کو انوائٹ کیا ہے, وہ آئیں گی اور وہ اپنا پورا ایک بزنس جو انہوں نے سٹارٹ کیا تھا اس کے بارے میں انشاءاللہ آپ کو پورا بتائیں گی بھی کہ وہ کون سا بزنس تھا, کیسے انہوں نے اس کو سٹارٹ کیا, کیا مسائل آئے, آج وہ بزنس کہاں پہ کھڑا ہے. تو یہ پورا انشاءاللہ ایک تو یہ چیز آپ کو ہم ساری بتائیں گے. باقی آج کی کلاس میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو نیکسٹ سٹیپس کے بارے میں بتانا چاہ رہا ہوں. ٹھیک ہے,
तो उस पे हाँ सर्टिफिकेट्स का आप लोगों के बहुत सारे सवाल हैं. सर्टिफिकेट इंशाल्लाह आप सब लोगों को मिलेंगे, कोई इसमें मसला परेशानी की बात नहीं है. आप लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिविटी भी की होगी, सब कुछ किया होगा इंशाल्लाह. तो आप लोगों को सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करना ये हमारा काम है, ठीक है. हम आपको ऑनलाइन सर्टिफिकेट भी देंगे, और अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को फिजिकल सर्टिफिकेट मिले तो फिर डेफिनेटली आप लोगों को हम आपके सिटी में जब आएंगे और वहाँ पे हम सेरेमनीज करेंगे, वहाँ पे हम नेटवर्किंग करेंगे. उस सेरेमनी में आने का फ़ायदा आपको ये होगा कि अगर आप एक हमारी कोई बहन है तो आपको मज़ीद बाकी बहनों के साथ सोशलाइज करने का, नेटवर्किंग करने का मौका मिलेगा और आप मिल के काम कर सकती हैं. अगर आप हमारे कोई भाई हैं, बुजुर्ग हैं, ठीक है, हमारे कोई छोटे भाई हैं, तो आप वहाँ पे बाकी लोगों के साथ सोशलाइज कर सकते हैं और उनके साथ नेटवर्किंग कर सकते हैं. तो ये इंशाल्लाह एक चीज़ है. इसके अलावा और क्या चीज़ होती है, प्रोडक्ट के अंदर मशवरा, कि आपके माइंड में कोई प्रोडक्ट है और आप चाह रहे हैं कि उसको बताया जाए आपको कि ये प्रोडक्ट ठीक है या नहीं है. तो उस पर इंशाल्लाह आपने देखा कि हमारे पास फ़हीम साहब थे, उस्मान साहब थे, मिस सिद्रा थी, इस तरह के अनगिनत और कितने सारे लोग हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह एक दर्दे दिल रखते हैं पाकिस्तान के नौजवानों के लिए, पाकिस्तान के बुज़ुर्गों के लिए, पाकिस्तान की ख़वातीन के लिए, पाकिस्तान के बच्चों के लिए. और ये लोग अपने एक जो इनकी एक काट है और उसके ऊपर एक बंदा गुरूर भी करता है, तकब्बुर भी कर सकता है, लेकिन वो बिल्कुल डाउन पे आके और एक आजिज़ी के साथ इंशाल्लाह आपने देखा कि उन्होंने आपको चीज़ें सिखाई. तो इंशाल्लाह इस तरह के बहुत सारे लोग हैं और वो लोग भी आपको आके आपको गाइड भी करेंगे, इंशाल्लाह मेंटोर भी करेंगे. तो आपकी कोई प्रोडक्ट है उसमें आपको मशावरत करेंगे, आपका कोई आइडिया उसमें आपको मशावरत करेंगे, आपको बिल्कुल फंसे हुए हैं, आपको नहीं समझ आ रही कि मुझे अब क्या करना चाहिए, उसमें आपको मशावरत करेंगे. आप टेक्निकली किसी प्रॉब्लम के अंदर स्टक हैं, उसमें आपको मशवरा देंगे, ठीक है. तो हर तरह की इंशाल्लाह हम आपको कंसल्टेशन प्रोवाइड करेंगे. तो ये इसका पूरा सिस्टम हम बनाएंगे, ठीक है. तो उसमें आपने परेशान नहीं होना इंशाल्लाह. तो बाकी हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है उसका भी आप लोगों को पता है, ठीक है. मैं नंबर यहाँ पे डिस्प्ले कर देता हूँ जो हमारा व्हाट्सएप का नंबर है, क्योंकि कुछ लोग पूछ रहे हैं, वैसे आप सब लोगों के पास वो नंबर होना चाहिए. ठीक है, मैं यहाँ पे 0325113332 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है. इस नंबर के ऊपर आप व्हाट्सएप कॉल ना करें, इसके ऊपर कॉल ना कीजिएगा, इसके ऊपर व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा. तो आप व्हाट्सएप चैनल में ज्वाइन भी कर सकते हैं, ठीक है. तो मैंने बारहा मौके के ऊपर व्हाट्सएप चैनल अपना शेयर भी, हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है वो शेयर भी किया है. तो इंशाल्लाह ये व्हाट्सएप चैनल हमारा कम्युनिकेशन का एक तरीका होगा. अब इसके अंदर हम एक सिस्टम ऐसा बनाएंगे कि अगर मिसाल के तौर पे हमने किसी के सवाल का कोई जवाब दिया है तो वो सवाल और उसका जवाब हम किसी न किसी ऐसी जगह पे उसकी रिकॉर्डिंग रख देंगे ताकि आप में से बाकी लोग भी उससे मुस्तफ़ीद हो सकें. क्या ख्याल है, ये होना चाहिए ना. हाँ, अगर कोई मिसाल के तौर पे ऐसा सेशन करना चाहता है जिसमें वो मशवरा करना चाहता है अपने बारे में, अपनी लाइफ के बारे में, कि मुझे क्या सीखना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, मैं लाइफ के जिस स्टेज के ऊपर हूँ मुझे क्या चीज़ करनी चाहिए, और वो कन्फ्यूज़ड हैं अभी भी, तो वो एक थोड़ी सी ऐसी चीज़ होती है कि जिसको हम पब्लिकली नहीं कर सकते. तो उसमें ज़ाहिर बात है मैं या मेरी टीम ही उनको एक प्राइवेट सेशन के अंदर उनको कंसल्ट कर रहे होंगे. लेकिन इंशाल्लाह जो सेशन पब्लिक करने वाला हुआ उसकी हम बाकायदा रिकॉर्डिंग्स अपलोड किया करेंगे ताकि आप हर वक्त आके देखें. एक बाज़ दफ़ा आपको किसी और इंसान से कोई ना कोई ऐसा आइडिया मिल जाता है, कोई ना कोई ऐसा मशवरा मिल जाता है कि आप उस चीज़ को अमल करते हैं तो आपको फ़ायदा हो जाता है, ठीक है. तो ये एक बड़ी एक कम्युनिटी का यही फ़ायदा होता है, ठीक है. एक जमात का यही फ़ायदा होता है, ठीक है. तो बिल्कुल इंग्लिश लैंग्वेज का आपको एक मसला होता है, इसी तरह से कम्युनिकेशन का एक बड़ा मसला होता है. बातचीत करना कई लोगों को नहीं आता, ठीक है. आप में से वो लोग जो कि अपनी आवाज़ या अपना फेस नहीं दिखाना चाह रहे लेकिन काम करना चाह रहे हैं, उनके लिए क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं. यूट्यूब पे कोई काम करना चाह रहा है तो क्या चीज़ें मौजूद हैं. इन अनगिनत आप लोगों के सवाल हो सकते हैं, ठीक है. तो उन सारी चीज़ों के ऊपर इंशाल्लाह हम एक पूरा सिस्टम बनाएंगे. तो ये बातें मैंने कर क्यों रहा हूँ, मैं ये बात आपकी बातों को, आपके सवालों को रिपीट क्यों कर रहा हूँ, इसलिए ताकि आप ये समझें कि हमें आपके मसाइल का पता है, हम आपके मसाइल को एक्नॉलेज करते हैं, हम उनको एक्सेप्ट करते हैं, उनको अंडरस्टैंड करते हैं, उनको समझते हैं, और उनका हल इंशाल्लाह आप लोगों ने हमारे ऊपर एतमाद किया है, पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग की आईटी टीम के ऊपर एतमाद किया है, अपना कमाओ की टीम के ऊपर एतमाद किया है, और हमारे जितने भी गेस्ट्स हैं जो अपना एक सक्सेसफुल अपने अपने वेंचर्स चला रहे हैं लेकिन वो एक नेशनल कॉज की वजह से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके ऊपर आपने एतमाद किया है. तो ये सारे लोग इंशाल्लाह आपको कंसल्ट करेंगे. और जब इतने ज़्यादा मुखलिस लोग एक जगह पे इकट्ठे होते हैं ना, ठीक है, दिलों का इखलास अल्लाह ताला जानता होता है, खुलूस नीयत अल्लाह ताला बेहतर जानता होता है, लेकिन जब एक जत्था, एक ग्रुप, एक जमात जब इकट्ठी होती है और उनके अंदर दिलों के अंदर इखलास होता है और एक कुर्बानी होती है और एक दूसरे के लिए आगे बढ़ के उसके लिए आसानी पैदा करने का एक जज्बा होता है, वजासर शरीक वाला एक कंसेप्ट उनके माइंड में होता है, तो अल्लाह ताला
बरकत भी देता है उस काम के अंदर, ठीक है। आपने किसी का रिस्क नहीं लेकर चले जाना, ना मेरा रिस्क आप कहीं लेके जाएंगे, ठीक है, ना मैं आपका रिस्क कहीं लेके जाऊंगा। तो वो अल्लाह ताला ने हमारा अपना अपना तयन किया हुआ है, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि आपकी वजह से मेरे रिस्क में बरकत हो जाए या मेरी वजह से आपके रिस्क में बरकत हो जाए। तो ये एक ऐसे समरात हैं जो कि हम समेट सकते हैं इंशाल्लाह, ठीक है। तो इस चीज़ का हम कर लेंगे। देखें, अभी आप लोगों को कुछ मैसेज आ रहे हैं कि व्हाट्सएप के ऊपर आपको थोड़े से मैसेजेस का डिले है। उसके मल्टीपल रीजंस हैं। एक तो मुल्की हालात ऐसे हैं, हमारी पूरी टीम इंगेज रही है मुख्तलिफ और दीगर एक्टिविटीज़ के अंदर भी, दीगर मीडिया एक्टिविटीज़ के अंदर भी, तो इसमें थोड़ा सा डिलेज ज़ाहिर बात आए हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी, चीज़ें एफिशिएंट हो जाएंगी और आपको इंशाल्लाह बेहतरीन तरीके से ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। तो सर्टिफिकेट्स की अनाउंसमेंट्स और उसका तरीका, ऑनलाइन कैसे मिलेंगे और फिजिकल कैसे मिलेंगे, कब इवेंट्स होंगे, किस शहर में कब इवेंट होगा, इसका पूरा कैलेंडर हम इंशाल्लाह लॉन्च करेंगे। और उससे पहले एक और चीज़ ये है कि मैं ग्रुप के अंदर एक पोल क्रिएट करूँगा, एक ग्रुप के अंदर मैं एक पोल क्रिएट करूंगा और उस पोल के अंदर मुख्तलिफ कोर्सेज होंगे, ठीक है। अब आप लोगों ने करना क्या है, बेसिकली मैं उसमें ये पूछ रहा हूँ कि हमने नेक्स्ट कोर्स किस चीज़ का करना है और कितने दिन का करना है। उसमें मैंने सजेस्टेड, मतलब पहले हम सेलेक्ट करेंगे कोर्स करना कौन सा है, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने उस हर कोर्स की जाके यूट्यूब पे वीडियो देखनी है। आपने ये देखना है कि इस कोर्स का फ़ायदा क्या है, इस कोर्स का स्कोप कितना है, इस कोर्स में होता क्या है। वीडियो एडिटिंग है तो उसके अंदर क्या होता है, ग्राफिक डिजाइनिंग है उसके अंदर क्या होता है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है तो उसके अंदर क्या होता है, शॉपिफाई है तो उसके अंदर क्या होता है, वर्डप्रेस है तो उसके अंदर क्या होता है, एफिलिएट मार्केटिंग है, ड्रॉप शिपिंग है, अनगिनत कोर्सेज हैं, ठीक है। तो हम कोर्सेज में उसमें वो लिस्ट करूंगा जो कि आप में से हर कोई कर सकता है, लेकिन हम उसको तफसील से करेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद जब आप में से वो कोर्स सबसे पहले नंबर पे कोई कोर्स आएगा तो मैं उसके बाद उसकी ड्यूरेशन और उसके टाइम के हवाले से एक पोल अलग से क्रिएट करूंगा कि अब उस कोर्स को अगर आप लोगों ने बिगिनर लेवल पे सीखना है, बिगिनर लेवल पे, तो वो इतने दिन लगेंगे, बिगिनर से एडवांस लेवल पे सीखना है तो इतने दिन लगेंगे, और बिगिनर से मास्टरी लेवल तक जाने के लिए इतने दिन लगेंगे, ठीक है। तो वो फिर अलग अलग ड्यूरेशन हर कोर्स के हिसाब से होगी। तो उसमें से फिर जिसके मेजॉरिटी वोट्स होंगे इंशाल्लाह हम उसको पहले कर लेंगे। तो हम एक पूरा सिलसिला रखेंगे, ठीक है। और ये नहीं होगा कि एट ए टाइम एक ही कोर्स चल रहा होगा, हम इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता पैरेलल में कोर्सेज चलाना शुरू कर देंगे, ताकि एक तरफ वीडियो एडिटिंग का कोर्स चल रहा है, दूसरी तरफ ग्राफिक डिजाइनिंग का भी कोर्स चल रहा है। तो ये जो चीज़ है ना, ये हमने इस तरीके से करनी है। और मुझे फिर आप लोगों में से फिर ऐसे लोग भी चाहिए, ठीक है। होना तो ये चाहिए कि जिस तरीके से अभी हमारे पास पाकिस्तान भर में फिजिकल क्लासरूम्स भी चल रही हैं और आप लोग माशाल्लाह 10 दिन लगातार आए हैं, और हमारे एडमिन्स का बहुत बहुत शुक्रिया, कोऑर्डिनेटर्स का बहुत बहुत शुक्रिया, और हज़ारों की तादाद में लोग हमें ऑनलाइन भी देखते हैं और आप लोग अपना वक्त निकाल के फैमिली टाइम सेक्रीफाइस करके आप लोग यहाँ पे बैठे होते हो। आप लोग अगर इस मिशन का हमारा पार्ट बन जाओ, आप लोग अगर इंस्ट्रक्टर बन जाओ, आप लोग अगर इस नॉलेज को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ टीम अप कर लो, तो इंशाल्लाह ये भी चीज़ें हम पूरी फार्मूलेट करेंगे, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम करेंगे। अब मैं आज की क्लास में ना अभी हमारे पास टाइम है 10:15 पे, 10:15 पे हम इंशाल्लाह अपने ई कॉमर्स की कुछ चीज़ें हमने डिस्कस करनी है, वो करेंगे। उससे पहले मैं थोड़े से कुछ स्किल्स का आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहा हूँ कि किस तरह के ऑनलाइन स्किल्स हैं और किसका क्या स्कोप है, कौन ऑनलाइन। बेसिकली मैं आपको साबित करना चाह रहा हूँ, आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि ऑनलाइन लोग क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। हमारी एक बहन थी, अभी भी वो माशाल्लाह काम कर रही है ऑस्ट्रेलिया से, और वो डाइवोर्स तलाक याफ्ता हमारी बहन थी, और अपने 2-3 बच्चों के साथ वो वहाँ पे रहती थी ऑस्ट्रेलिया के अंदर, और वहाँ पे जो फैमिली कोर्ट होती है उसके अंदर वो लॉयर थी। तो दिन को वो बच्चों को स्कूल भेज के तैयारी करा के और वो जाती थी अपने फैमिली कोर्ट में, और फिर रात को वापस आती थी। और जब हमारी रात को 8 से 10 क्लास होती थी ना, तो उसके रात के 2 बज रहे होते थे। यानी कि ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान का जो टाइम है ना, वो इस तरीके से होता था। हमारी उस टाइम 8 से 10 क्लास होती थी, तो उसके रात को 2 बज रहे होते थे। और वो हमारी जो बहन थी वो क्या करती थी, वो कहती थी कि सर मैंने अपना माइक ओपन किया हुआ है, तो अगर मैं सो जाऊं या मेरी तरफ से कोई फीडबैक ना आए तो आप लोगों ने मुझे जगा देना है, कोई ना कोई चीज़ बोल के या कोई ना कोई चीज़ ऊंची कह के, इस तरीके से। और वो बैठ के साथ पूरी क्लास में साथ साथ चॉकलेटें भी खा रही होती थी अपने आप को जगा के रखने के लिए, कॉफ़ी पी रही होती थी अपने आप को साथ जगा के रखने के लिए। अच्छा, उसको टेक्निकल चीज़ें समझ नहीं आती थी। मतलब वो उस बहन का एक प्रॉब्लम ये था कि उनको वो इतना मेंटली एग्जॉस्ट हो जाती थी पूरा दिन, और फिर रात को 2 बजे क्लास लेना, तो एक टेक्निकली उनको चीज़ें बहुत ज़्यादा उनके माइंड में बैठती नहीं थी। तो एंड पे हमने क्या किया, हमने फाइवर के ऊपर उनको कंसल्ट किया कि फाइवर के ऊपर आप वर्चुअल असिस्टेंट बन जाओ। वीए का लफ्ज़ आप लोगों ने सुना होगा, वर्चुअल असिस्टेंट। अब वर्चुअल असिस्टेंट क्या करता है? वर्चुअल असिस्टेंट एक पर्सनल सेक्रेटरी होता है।
آپ اس سے جو مرضی کام کروا لو. فار ایگزامپل میں ہوں نا, مجھے ویڈیو ایڈیٹنگ کی سروسز چاہیے, مجھے گرافک ڈیزائننگ چاہیے, مجھے کوئی ایسا پرسن چاہیے جو میرا سوشل میڈیا سنبھالے, تو میں ایک ایسے وی اے کو ہائر کر لوں گا جو یہ تینوں کام کر لے. اسی طریقے سے ایک ایسا پرسن ہے جس کو ٹریولنگ بہت زیادہ کرتا ہے, ایک بزنس مین ہے جو بہت زیادہ ملکوں میں ادھر ادھر جاتا ہے, یا پھر ایک ٹورسٹ ہے وہ مختلف ملکوں میں سیر سپاٹے کرتا ہے. اب اس نے جس ملک میں بھی جانا ہے وہاں کی سستی ایئر لائن ٹکٹ کون سی ہوگی, وہاں سے ہوٹل کون سا بک کرنا پڑے گا اس سٹی کے اندر, پھر اس ہوٹل تک جانے کے لیے ٹیکسی کی ایڈوانس بکنگ ہوگی, ٹھیک ہے, پھر اس ہوٹل میں جا کے کتنے دن کا اسٹے کرنا ہے, پھر وہاں پہ اس شہر کے اندر کون سے اچھے اچھے گھومنے پھرنے کے اسپاٹس ہیں, ان کی ٹکٹس کیا ہیں, ان کی بکنگ پہلے. تو یہ ایک وہ وی اے ہائر کر لے گا, وہ ورچوئل اسسٹنٹ ہائر کر لے گا جو کہ اس کے بیاف پہ یہ سارے کام کرے گا, گوگل کو یوز کر کے, میپس کو یوز کر کے, مختلف چیزیں یوز کر کے اس کے بیاف پہ یہ ساری بکنگس کرے گا, اس کے بیاف پہ ایئر لائن ٹکٹ بک کرے گا. یعنی کہ ورچوئل اسسٹنٹ کوئی بھی کام کر سکتا ہے, ٹھیک ہے, کوئی بھی چیز کر سکتا ہے. وہ آپ کو اس کے کوئی بھی مینیجریل کام کروا لیں, ڈاٹا انٹری کا کام کروا لیں, یہ سوشل میڈیا کا کام کروا لیں. تو ہم نے ان کو یہ گگ بنا کے دے دی. تو ان کو آسٹریلیا کی ہی ایک کنسٹرکشن کمپنی نے ہائر کیا, اور آسٹریلیا کی وہ کنسٹرکشن کمپنی وہ کیا کرواتے تھے, انہوں نے ویب سائٹ کے اوپر آرٹیکلس پوسٹ کروانے ہوتے تھے. اب وہ آرٹیکلس کا وہ لکھے لکھائے آرٹیکلس دیتے تھے اور آپ نے صرف پوسٹ کرنا ہوتا تھا. اور مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ ایک ویک کا وہ $700 آسٹریلین دیتے تھے, 1 ویک کا, یعنی کہ ایک ہفتے کی ویکلی پیمنٹ وہ ریلیز کرتے تھے $700 آسٹریلین. ٹھیک ہے, تو $700 آسٹریلین اگر میں AUD to PKR کروں, AUD to PKR, تو 180 کا آسٹریلین ڈالر ہے, تو 1,26,265 روپے سمجھ لیں کہ ہفتے کے, جو کہ ان کے لیے اتنے زیادہ نہیں تھے. ٹھیک ہے, ظاہری بات ہے وہاں کے خرچے اور وہاں کی کرنسی ایک ڈفرینٹ ہے. پاکستان کے اندر تو چلیں یہ 1,26,000 بن رہا ہے, لیکن ان کے لیے یہ کم تھے. لیکن دا تھنگ از کہ انہوں نے پھر ہماری ایک اور سسٹر تھیں جو کہ اسی کورس کے اندر شامل تھیں, وہ سعودی عربیہ سے تھیں. ٹھیک ہے, تو ان کے ساتھ انہوں نے ٹیم اپ کر لیا اور وہ دونوں مل کے یہ کام کرتی تھی, کیونکہ ظاہر بات ان کو بڑا لیٹ ہو جاتا تھا. تو اس طریقے سے وہ سپلٹ کر لیتی تھی 50-50. یعنی کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے اندر ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت ہی کوئی ٹیکنیکل اسکل اٹھاؤ تو وہ چیز کر لو. اچھا, ان کو ورڈ پریس, وہ بیسیکلی آرٹیکلس کہاں پہ پوسٹ کرنے ہوتے تھے, ورڈ پریس کی ویب سائٹ تھی اور اس کے اوپر آرٹیکل پوسٹ کرنے ہوتے تھے. اب ان کو وہ بھی نہیں آتا تھا, تو ہم نے ان کو پھر علیحدہ سے زوم سیشن کروا کے وہ چیز سکھائی. اچھا, پھر کلائنٹ کے ساتھ کلائنٹ نے بھی ان کو ویڈیو ریکارڈنگ کر کے دی کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ بتایا. کلائنٹ نے, وہ جو آسٹریلین کلائنٹ تھا, اس نے اسٹیپ بائی اسٹیپ بتایا کہ ایسے 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 یہ کام کرنا ہے. تو بیسیکلی وہ لوگ اپنے گھنٹے بچانے کے لیے دوسروں کو گھنٹے خریدتے ہیں. ٹھیک ہے, حالانکہ وہ خود بھی یہ کام کر سکتا تھا وہ کلائنٹ, لیکن وہ خود نہیں کر رہا تھا. وہ کہہ رہا تھا بھائی میں اپنا ٹائم بچاؤں, میں ویڈیو ایڈیٹنگ خود بھی کر سکتا ہوں اپنی, لیکن میں اپنی ٹیم سے کرواتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ تاکہ میں کسی اور چیز پہ فوکس کر سکوں. سو یہ ایک سائیکالوجی ہوتی ہے. تو میں ابھی آپ کو تھوڑا سا فائبر کے اوپر ریویو کروانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو پتہ چلے کہ اسکل کس کس طرح کے ہیں, تاکہ آپ لوگ جب وہ ہمارے کنسلٹیشن سیشنز کے اندر جب انشاءاللہ ہوں گے نا, تو آپ لوگوں کو وہ چیزیں بہتر طریقے سے پتہ چلیں گی. جی, فوٹو روم, شاپیفائی, یہ سارے لنکس میں بھیج دوں گا, پریشان نہ ہوں آپ لوگ. ٹھیک ہے, ڈونٹ وری. اچھا, فائبر پہ چلتے ہیں. تو فائبر بیسیکلی وہ ویب سائٹ ہے جہاں پہ جو فری لانسرز ہیں, ٹھیک ہے, جو فری لانسرز ہیں وہ یہاں پہ ارننگ کرتے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, فائبر کے اوپر. تو فائبر وہ ویب سائٹ ہے, ٹھیک ہے, یہاں پہ یہ فائبر کے اوپر, تو یہ فری لانسرز یہاں پہ ارننگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ اب دیکھیں فائبر کے اوپر, اب یہ ڈفرنٹ, پہلی گرافکس اینڈ ڈیزائن کے اندر آ جائیں. ٹھیک ہے, یہ پہلی کیٹیگری گرافکس اینڈ ڈیزائنس کی ہے. اب اس کے اندر کیا ہے, سب سے پہلا لوگو ڈیزائن. ٹھیک ہے, آئی بلیو کہ آپ لوگوں کو شو ہو رہی ہوگی اسکرین, لیٹ می سی. ہاں, ٹھیک ہے. لوگو ڈیزائن کی سب سے پہلی سروس ہے کہ آپ کوئی بھی نیا بزنس آ رہا ہے, دن میں کتنے بزنسز نئے آتے ہیں, ان سب کو لوگو ڈیزائن چاہیے ہوتا ہے, لوگو ڈیزائننگ کی سروسز چاہیے ہوتی ہیں. اب میں اگر صرف آپ کو اس کو اوپن کر کے دکھاؤں نا کہ کتنے پاکستانی اس کے اندر کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو میں تھوڑا سا زوم آؤٹ کرتا ہوں. تو اب یہ ایک یہاں پہ یہ سکینہ ہیں. ٹھیک ہے, یہ آئی بلیو یا پاکستان سے ہوں گی یا بنگلہ دیش سے ہوں گی. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے اور میں اسکرول کرتا ہوں تو یہ سونیا ہیں. ٹھیک ہے, انڈینز بھی بیچ میں آپ کو نظر آئیں گے, بنگلہ دیشی بھی نظر آئیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ ماریا ہیں, محمد عمران ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ محمد علی ہیں. پاکستانی بھی اس کے اندر آپ کو بڑے نظر آئیں گے, یوسف ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ملی, یہ بھی مسلم ہے, انہوں نے بھی, یا یہ انڈین بنگلہ دیشی ہوں گی یا مسلم پاکستان سے ہوں گی. لیٹ سی, سب سے نیچے اسکرول کریں گے نا تو یہ دیکھیں یہ پاکستان سے ہیں.
ठीक है। अब ये जो हमारी बहन है ये पाकिस्तान से, अच्छा ज़रूरी नहीं कि आप अपनी तस्वीर लगाओ यहाँ पे, इसके ऊपर तस्वीर लगाने से ही आपका जो फ्रीलांसिंग का है वो आपका मामला सेट होगा, ज़रूरी नहीं है तस्वीर आप यहाँ पे लगाएं, ठीक है। तो अब ये हमारी जो बहन है इसके इस टाइम 7 ऑर्डर क्यू के अंदर है। 7 ऑर्डर्स क्यू में होने का मतलब ये है कि इस टाइम 7 लोगों ने ऑलरेडी इनको ऑर्डर प्लेस कर दिया हुआ है, और मिनिमम लोगों 4,400 रुपये में बना के देती हैं, स्टैंडर्ड 16,000 में है और प्रीमियम 31,000 में है, ठीक है। तो ये बिल्कुल एक एक कंसेप्ट बना के देती हैं, इनके आपको ही कहेंगे ना कि मेरा ये बिजनेस है मुझे लोगो बना देना है, तो वो एक आपको कंसेप्ट बना के देंगी, एक तरह का लोगो, एक तरह के डिज़ाइन का लोगो आपको बना के देंगी, दूसरी तरह का नहीं करके देंगी। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर वो आपको थोड़ी सी इसकी वेक्टर फाइल, सोर्स फाइल वगैरह भी दे देंगी। मतलब ये चीज़ें क्या होती हैं, जब आप लोगो डिज़ाइनिंग सीखेंगे तो इंशाल्लाह आपको पता चलेगा ये बड़ी बेसिक किस्म की चीज़ें होती हैं। इसके अंदर वो 2 लोगों के डिज़ाइन आपको बना के देंगी और सोशल मीडिया की किट भी आपको साथ बना के देंगी। तो बेसिकली ये इस तरीके से लोगो डिज़ाइनिंग के अंदर भी काफ़ी पोटेंशियल मौजूद है जो कि आप कर सकते हैं। अच्छा, बिजनेस कार्ड डिज़ाइन, बिजनेस कार्ड डिज़ाइनिंग, वही जो आपके बिजनेसेस का बिजनेस कार्ड होता है वो चीज़ बन सकती है, ठीक है। अच्छा, और इसमें क्या चीज़ें हैं जो कि बिल्कुल सादा, वेबसाइट के डिज़ाइन, सिर्फ वेबसाइट का डिज़ाइन बनाना, ठीक है, सिर्फ वेबसाइट का डिज़ाइन बनाना, वेबसाइट डेवलप करना नहीं। हमने तो शॉपिफाई पे जाके पूरी वेबसाइट बनाई थी ना, इसमें सिर्फ वेबसाइट का डिज़ाइन बनाना है बस, और कुछ नहीं करना, ठीक है। कार्टून्स बनाना, स्टोरी बोर्ड्स बनाना, एल्बम के कवर बनाना, ठीक है। और इसके अलावा कैटलॉग जिस तरीके से होती है कि मेरा एक सॉफ्टवेयर हाउस है तो इसकी मेरी कैटलॉग बनेगी जिसके अंदर मेरी सारी सर्विसेज आएंगी। एक आपका बिजनेस है कपड़ों का, तो आपके कपड़ों की कैटलॉग बन जाएगी जिसमें आपके बेसिकली सारे कपड़ों के डिज़ाइंस और उनके पैटर्न्स, उनकी कीमतें, वो सारा कुछ आ जाएगा। तो कैटलॉग्स के भी इस तरीके से चीज़ होती हैं। और जिस तरीके से वेबसाइट हमने बनाई थी ना, वेबसाइट का हमने बनाया एक डिज़ाइन उठाया था, तो इसी तरीके से आपके इन चीज़ों के भी बने बनाए डिज़ाइन होते हैं। और अब एआई आ चुकी है, तो एआई के आने की वजह से तो आपका काम और ज़्यादा आसान हो गया, और इससे ज़्यादा आसानी हो गया चीज़ों की, ठीक है। अच्छा, प्रोग्रामिंग के अंदर हमने ज़्यादा चीज़ों में नहीं खपना सिवाय वर्डप्रेस और शॉपिफाई के, ठीक है। तो 2 चीज़ें हैं, वर्डप्रेस और शॉपिफाई, हम ज़्यादा से ज़्यादा इन 2 चीज़ों के अंदर जाएंगे, बाकी किसी चीज़ के अंदर हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो प्रोग्रामिंग में ज़ाहिर बात है वो सारा कोड लिखना पड़ता है। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आए तो एसईओ, तो एसईओ मैंने आपको बताया था कि जब कोई बंदा, हमने याद है ना, हमने पढ़ा था कि ट्रैफिक कैसे लेके आते हैं किसी भी वेबसाइट पे, तो उसमें से एक तरीका जो मैंने आपको बताया था वो बताया था कि सोशल मीडिया से ट्रैफिक आती है ऐड लगा के। दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था कि आपका जो कस्टमर है वो गूगल पे जाके कुछ लिखता है और उसके लिखने से वेबसाइटों की लिस्ट आ जाती है, और उस वेबसाइट की लिस्ट में जो टॉप 1, 2, 3 या कोई लिंक होते हैं उनमें से किसी एक पे वो क्लिक कर लेता है। तो बेसिकली ये कैसे डिसाइड होता है कि कौन सी वेबसाइट टॉप पे आएगी, कौन सी सेकंड पे आएगी, कौन सी थर्ड पे आएगी, ये एसईओ डिसाइड करती है। तो एसईओ बेसिकली ये वाला काम होता है, और एसईओ हर वो बंदा कर सकता है। मैं समझता हूँ जिसको, जो कहता है ना कि मेरा दिमाग भी नहीं चलता, ठीक है, वो बंदा भी एसईओ कर सकता है, ये इतनी आसान चीज़ है, ठीक है। तो इसके अंदर भी आप देखेंगे तो ये महविश हनीफ हैं, अखलाक कुरैशी हैं, हुरैन फातिमा है, ठीक है, बहुत सारे, दानियाल है, बहुत सारे आपको पाकिस्तानी मिलेंगे, अवैस है, निमरा साबिर है, ठीक है, हामिद है, इमरान है, हया है, ठीक है, बेग है, आप देखें अरहम है, जमील है, असलम है। सारे पाकिस्तानियों ने इसको डोमिनेट किया हुआ है, और हर बंदे के पास कोई ना कोई ऑर्डर होगा, हर बंदे के पास कोई ना कोई ऑर्डर होगा, हर बंदे को उसकी दुकान चल रही है, उसका काम चल रहा है, और लोगों को उसका ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। और ये चीज़ें जब आप सीखते हैं, आपके दूर से आपको दिखने में बड़ा मुश्किल लगेगा कि ये पता नहीं क्या चीज़ें लिखी हुई हैं, ये DA50 क्या चीज़ होती है, डू फॉलो क्या चीज़ होती है, बैकलिंक क्या चीज़ होती है, बड़ी मुश्किल चीज़ें आपको महसूस हो रही होंगी। लेकिन यकीन जाने कि जब आप इन चीज़ों को सीखना शुरू करते हैं ना, तो ये कोई इतनी पेचीदा चीज़ें नहीं है, बड़े आसानी से आप सीख जाते हैं ये चीज़ें, ठीक है। और एसईओ वाला प्लान, एसईओ वाला जो बंदा होता है ना, एसईओ के रिजल्ट नजर आना, ठीक है। एक होता है कि मैं ऐड चलाता हूं, मैंने ऐड चलाया और ऐड चलाते ही मेरी सेल आना शुरू हो गई, एक तो ये चीज़ होती है। एसईओ वो चीज़ होती है कि इसका रिजल्ट आने में 2-3 महीने लग जाते हैं, बाज़ दफ़ा 6 महीने भी लग जाते हैं, यानी कि 2-3 महीनों में इसका रिजल्ट आहिस्ता आहिस्ता नजर आना शुरू होता है। एसईओ बेसिकली स्लो प्रोसेस है, आहिस्ता ग्रेजुअल प्रोसेस है। तो आपने कम से कम 5-6 महीने तो क्लाइंट से पैसा लेके खाने ही है, ठीक है। तो 5-6 महीने आपको पता है कि आपकी रोजी कहीं भी नहीं गई। तो एसईओ में इस तरीके से काम होता है। लेकिन 5-6 महीने के बाद भी अगर आप क्लाइंट को वो रिजल्ट नहीं मिल रहा, ठीक है, और वो तो ज़्यादा
क्या होगा, वो आपसे पॉइंट हो जाएगा, वो मायूस हो जाएगा। तो एसईओ एक इतनी जबरदस्त चीज है कि इसके अंदर प्रॉमिस एक चीज का ये होता है कि ये प्रोजेक्ट्स इसके लॉन्ग टर्म होते हैं, शॉर्ट टर्म प्रोडक्ट नहीं, शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट नहीं होते कि क्लाइंट आया, आपने उसका काम किया, उसने आपको पैसे दिए और वो चला गया। नहीं, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे महीनों के ऊपर मुश्तमिल आपको बेसिकली प्रोजेक्ट मिलते हैं। तो एसईओ इतना जबरदस्त स्किल है। अब एक नई चीज आ गई है जिसमें मैं आप लोगों को ट्रेन कर सकता हूँ, और इस पर हम इंशाल्लाह, जिस तरह अभी कुछ लोग कभी कह रहे थे कि सर इस एआई के ऊपर भी वर्कशॉप रखें, जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जीईओ। चैट जीपीटी का जो लफ्ज है ना, चैट जीपीटी, तो जी, चैट के बाद जो जीपीटी है ना, तो जी का मतलब होता है जनरेटिव। जी का मतलब हमें वैसे पता नहीं होता ना मुखफ़फ़ ये किस चीज़ का है, हम तो वैसे बोलने में बोल देते हैं चैट जीपीटी। तो जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफार्मर, इस तरह इसका पूरा नाम होता है, लेकिन ये जनरेटिव पहला नाम होता है। तो जनरेट करने का क्या मतलब होता है? जनरेटिव का मतलब ये होता है कि हम एआई को कोई चीज़ कहते हैं, उसको कोई कमांड देते हैं, तो वो हमें टेक्स्ट निकाल के दे देता है, वो हमें इमेज निकाल के दे देता है, जिस तरह आपको याद हो हमने लोगो बनाया था, और हमें वो वीडियो भी निकाल के दे देता है। तो जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन कि इसका क्या मतलब हुआ कि अगर चैट जीपीटी या जेमिनाई या कोई भी एआई का टूल, उससे कोई बंदा कोई चीज पूछे, मिसाल के तौर पे आपकी ट्रैवल एजेंसी है, अगर कोई पूछता है कि अच्छा जी अगर पाकिस्तान से उम्रा करने के लिए जाना हो तो क्या क्या आपके पास लवाजमात होने चाहिए, तो आप क्या जो कंटेंट है आपकी वेबसाइट पे इस हवाले से जो कंटेंट है, तो चैट जीपीटी और जेमिनाई आपकी वेबसाइट का कंटेंट इस्तेमाल करे और वो आगे हवाले के तौर पे दे, ताकि जब वो बंदा चैट जीपीटी से या जेमिनाई से पूछेगा ये सवाल, तो आपकी वेबसाइट का वो हवाला देगा और वो बंदा उस इंफॉर्मेशन को पढ़ के मुतासिर होगा और आपकी वेबसाइट पे आके हो सकता है आपको ऑर्डर प्लेस कर दे। अब रुझान ये हो रहा है कि लोग इंफॉर्मेशन लेने के लिए चैट जीपीटी के पास जाते हैं, इंफॉर्मेशन लेने के लिए अब वो वेबसाइटों की तरफ नहीं जाते, वेबसाइटों की तरफ, गूगल की तरफ सिर्फ एक काम के लिए जाते हैं, शॉपिंग करने के लिए। दैट्स इट। मेजॉरिटी इस टाइम ये एक रुझान बन रहा है। तो जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये न्यू साथ इसलिए लिखा है, ये एक न्यू फील्ड है। और इसके अंदर देखें एसईओ वाली फील्ड के अंदर कितने लोग काम कर रहे हैं, 54,000 से जायद, 54,000 प्लस लोग हैं, 54,000 से ज्यादा लोग हैं जो एसईओ की सर्विसेज दे रहे हैं। लेकिन स्टिल आप इसके अंदर काम कर सकते हैं। ये मायूस नहीं होना कि 54,000 से ज्यादा लोग फ्रीलांसर काम कर रहे हैं तो मुझे कैसे। भाई दुनिया में करोड़ों बिजनेसेस हैं, दुनिया में लाखों बिजनेसेस हर दिन काम आ रहे हैं, तो आपको बड़े आराम से इंशाल्लाह जगह मिल जाएगी। जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन में कितने लोग सर्विसेज दे रहे हैं? सिर्फ 183, सिर्फ 183 लोग हैं। कहां 54,000 से ज्यादा लोग और कहां सिर्फ 183 लोग जो कि जनरेटिव इंजन इसके अंदर कह रहे हैं। और इसके अंदर ये देखें, मानव इंडियन है, श्याम पाकिस्तानी है, ठीक है। अब श्याम के ने सिर्फ अभी तक 4 प्रोजेक्ट्स किए हैं, ठीक है। स्टार्ट है ना, सबका स्टार्ट है। ये शीमा, मोहम्मद साद, फरहान अली ने 4 प्रोजेक्ट्स किए हैं, ठीक है। ये कैसे पता चलता है? ये देखें, ये फरहान अली है ना, तो इसके साथ ये रिव्यूज में 4 रिव्यूज हैं। प्रोजेक्ट शायद इसने ज्यादा किए हों लेकिन रिव्यूज को उतने आए हुए हैं। बहरहाल ये परेशानी होना कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, रिव्यू जिसको समझ आ गई वो ठीक है, जिसको नहीं आई परेशानी होना। लेकिन सिर्फ आप ये देखें कि एक नई चीज़ है, इस पे क्या वो कह रहे हैं 100% गारंटी रिजल्ट्स होगा, ये होगा ऑन पेज टेक्निकल और पता नहीं क्या चीज़ होती है, अभी तक आप लोगों को नहीं पता। लेकिन आपको एक मुद्दा समझ आ गया कि कुछ नए ऐसे स्किल्स हैं जो कि शायद आपको नहीं पता, आपको उनके बारे में इल्म नहीं है कि ऐसे कोई स्किल मौजूद हैं, लेकिन हमें पता है बीइंग टेक्निकली इन दिस फील्ड, इस फील्ड के अंदर टेक्निकली हम काफ़ी अरसे से मौजूद हैं। तो हम जब आपके साथ आपकी कंसल्टेशन करेंगे ना, आपके साथ जब बैठेंगे, तो हम आपसे बात करके आपका अंदाज़ा लगा लेंगे कि अच्छा आपको क्या चीज़ सीखनी चाहिए। तो एक एक्सपर्ट से जब कंसल्टेंसी ली जाती है, एक्सपर्ट से जब मशवरा लिया जाता है, एक आलिम के पास जब हम जाके कोई मसला पूछते हैं तो उसको दीन के तमाम उलूम का अहाता होता है। तो वो जिस अंडरस्टैंडिंग, जिस एक इल्म के साथ, ठीक है, जिस बसीरत के साथ, वो जिस तरीके से आपको मामले की जिस फहम के साथ आपको उस मामले को क्लियर करेगा, एक आम बंदा उस तरीके से नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये एक चीज़ होती है। तो बात यह है कि इस तरह के बहुत सारे स्किल्स हैं। आगे मजीद चलते हैं। सर्च इंजन मार्केटिंग। सर्च इंजन मार्केटिंग क्या चीज़ होती है? गूगल के ऊपर अगर मैं कोई चीज़ लिखता हूँ और लिखने के बाद एक तो है ना कि एसईओ की मदद से टॉप वेबसाइट आ जाएगी, दूसरे पे तीसरे पे तो ये आ जाएगी, जिसमें टाइम लगता है, जिसमें 5-6 महीने तो कम से कम लग ही जाते हैं ना। लेकिन मैं कहता हूं कि यार अगर कोई भी बंदा ये लफ्ज़ लिखे ना तो मेरा ऐड सबसे ऊपर आ जाना चाहिए, ठीक है। मैं एसईओ में 5-6 महीने नहीं लगा सकता, लेकिन मेरे पास पैसा है, मैं पैसा खर्च करके ऊपर आ सकता हूँ, ठीक है। जिसकी लाठी उसकी भैंस। जब तक मैं पैसा खर्च करता रहूंगा मेरा रिजल्ट टॉप पे रहेगा। उसको कहते हैं सर्च इंजन मार्केटिंग। मैं अगर जूते बेच रहा हूं तो मैं अगर सेमरश से
SEMrush से मैं अगर वो कीवर्ड्स निकाल लूँ जो लोग जूते बेचने के लिए कर रहे हैं तो सर्च इंजन मार्केटिंग हो सकती है। इसकी मैं छोटी सी एग्जांपल आपको देता हूँ, एक छोटी सी एग्जांपल आपको देता हूँ, ठीक है। एक आपको अभी मैं क्लियर करता हूँ। एक सवाल है, मैं आप सब लोगों से पूछता हूँ। हमारे पास एक क्लाइंट आया और उस क्लाइंट ने हमें ये कहा कि मैं यूएई के अंदर, दुबई के अंदर, ठीक है, मैं अरब अमारात के अंदर मैं राइडर्स का काम करता हूँ। ये जो करीम के राइडर्स होते हैं, ऊबर के राइडर्स होते हैं, मैकडोनल्ड के राइडर्स होते हैं, ठीक है, एतिसलात के राइडर्स होते हैं, ठीक है, इसी तरीके से और अमेजोन के राइडर्स होते हैं, ठीक है। तो ये जितनी भी कंपनीज है ना, मैं इनको राइडर्स देता हूँ। इसी तरीके से अगर कोई कारोबार है, कोई बिजनेस है, उसको डिलीवरी के लिए राइडर्स चाहिए, हम उसको वो राइडर्स भी देते हैं। तो आप मेरे लिए ये काम करें कि मुझे राइडर्स निकाल के दें यूएई से, मैं आपको उसका पे करूंगा। अब मसला आप सब लोगों को समझ मेरे ख्याल है आ गया होगा कि इशू क्या है, हमारे पास इशू एट हैंड क्या है। आप टेक्निकल हैं, आप एक्सपर्ट हैं, आपने सोशल मीडिया की मदद से उस बंदे को राइडर्स ला के देने हैं यूएई से। लें जी, आप तो पाकिस्तान बैठे हैं, आपको क्या पता कि यूएई के अंदर क्या होता है, कैसे होता है। एक आगे नहीं चीज़, एक मसला है। तो मैं इसके लिए क्या करूंगा, मैं स्क्रीन स्टॉप करता हूं और मैं SEMrush ओपन करता हूं, ठीक है। SEMrush ओपन करते हैं तो मैं आपको इसका अभी जवाब देता हूं। अभी आप लोगों के सवाल माइंड में ये जवाब की सूरत में एक सवाल होगा कि ये कैसे मुमकिन है, ये मैं कैसे कर सकता हूं, पाकिस्तान से रहते हुए ये काम कैसे हो सकता है। तो ये एक इशू है, इसका अभी हम हल निकालते हैं इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा लें जी, हल क्या निकालना था हमने, एक और इशू ये आ गया हमारे पास कि मैंने टूल्स की वेबसाइट ओपन की तो वो कह रहा है कि जी अच्छा जी 11 मई 10 PM पे हमारे टूल्स ऑन होंगे। तो ये जिनसे हमने टूल्स SEMrush बाय किया हुआ है वो ये कह रहे हैं कि 11 मई को 10 बजे मेंटेनेंस मोड वो ऑन कर रहे हैं। लें जी, अब ये भी एक मसले मसाइल चलते हैं, ठीक जी, ये भी जंग में थे इनके भी मेरे ख्याल है सर्वर वगैरह मसला आ गया। लेकिन कोई मसला नहीं, हम एक काम करते हैं, हम फिर भी परेशान नहीं होते। हम एक काम करते हैं, हम SEMrush का फ्री अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो SEMrush का हम फ्री अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। फ्री अकाउंट में कम से कम 2 3 4 तो मैं सर्चेस कर ही सकूँगा ना, मेरा बेसिकली आप लोगों को गुजारा हो जाएगा हमारा। ले जी, SEMrush ओपन हो गया। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि साइन अप के ऊपर हमने क्लिक करना है। SEMrush बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, मैं अभी उसका एक डेमो आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों को मैं अभी इस हमारा जो ई कॉमर्स वाला 10-15 पे हमें जो गेस्ट ज्वाइन करेंगे उससे पहले मैं आप लोगों को ना थोड़ा सा सोचना सिखा रहा हूँ कि एक कारोबार, बेसिकली एक कारोबार को बंदा कौन सा चाहिए होता है। एक कारोबार को वो बंदा चाहिए जो उसके लिए सोच सके, जो उसके लिए हल निकाल सके। मैं रियल एस्टेट की कंपनी हूँ, मुझे पाकिस्तान में प्लॉट बेचने हैं। मैं आपके पास आता हूँ, मैं कहता हूँ कि यार मुझे प्लॉट बेच के दो। आप कहेंगे कि सर प्लॉट कैसे बिकेंगे, मुझे ऐड चलाना आता है बस। ये नहीं है, ये ऐड चलाना, वेबसाइट बनाना, ये टूल्स हैं, ये आपके औजार हैं। लेकिन उन औजारों को इस्तेमाल कैसे करना है, ठीक है, ये अब आपकी सोच है। जिस तरीके से एक लतीफ़ा चलता है ना, एक बड़ा एक जब लतीफ़ा होता है कि एक कश्ती होती है, उस कश्ती का ना इंजन सीज हो जाता है, ठीक है। अब वो इंजन सीज हो जाता है तो अब सबको समझ नहीं आ रही होती कि क्या करें, हम एक बेयाबान के अंदर हैं, अब इस चीज़ का क्या हल है। तो उनमें से एक इंजीनियर आता है, वो इंजीनियर क्या करता है, वो ना हथौड़ा पकड़ता है और उस मशीन के ऊपर ना एक मारता है, ठीक है। तो कुछ भी नहीं होता। दूसरा इंजीनियर आता है, तीसरा इंजीनियर आता है। तो जो उनका सुपरवाइजर होता है ना, वो कहता है कि यार आप में से जो बंदा इस मशीन को ठीक करेगा ना, मैं उसको इतने पैसे दूंगा, 5 लाख रुपए दूंगा 20 साल के तौर पे, इनाम के तौर पे। तो एक इंजीनियर आता है, वो क्या करता है, वो एक मशीन के किसी एक कोने में ना सिर्फ हल्का सा थोड़ा मारता है, आके मशीन चल पड़ती है। तो वो बड़ा हैरान होता है, वो कहता है कि यार ये मशीन चला दिया आपने। तो कहता है कि सर जी मेरे फिर 5 लाख रुपए आप निकालें। तो वो कहता है यार एक हथौड़ा मारने के 5 लाख, हथौड़ा मारने के 5 लाख। वो कहता है कि सर जी 4,99,000 रुपये जो है ना वो एक तरफ, लेकिन जो 1,000 रुपये हैं वो मैं हथौड़ा मारने के ले रहा हूँ, लेकिन 4,99,000 मैं इस चीज़ के ले रहा हूँ कि हथौड़ा मारना कहाँ पे था। तो ये एक स्किल होता है कि वो काम बज़ाहिर आपको बड़ा छोटा सा महसूस हो रहा होता है कि यार ये चीज़ तो मैं भी कर सकता था, ये चीज़ तो इतनी आसान थी, इसके आप इतने पैसे ले रहे हो। तो भाई अगर आप कर सकते थे तो आप खुद कर लेते, ठीक है। तो आप खुद कर लेते, आप बनवा के, आप वेबसाइट अगर आपको खुद इतनी आसान लग रही है शॉपिफाई की वेबसाइट बनाना, तो आप खुद बना लो,
ठीक है, आप खुद बना लो वेबसाइट, लेकिन बात यह है कि जो बाहर के गोरे क्लाइंट्स होते हैं ना, जो डॉलर्स में आपको पे करेंगे, ठीक है, जो डॉलर्स में आपको खिलाएंगे, उनकी मेंटालिटी है वो अपने घंटे बचाते हैं। क्यों? क्योंकि जिंदगी मुख्तसर है। हम जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे हमारी जिंदगी का वो हमारी टिक 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 चल रही है, हम वैसे वैसे अपनी कब्र के करीब चलते चले जा रहे हैं और हमें नहीं पता कि हमारी जिंदगी कब तक है। तो हम अपने वक्त को कीमती बनाते हैं। हमें तो पता है ना हमारा जन्नत जहन्नम का कंसेप्ट है, हमें आगे चल के इंशाल्लाह अल्लाह ताला के साथ मामला दुरुस्त रहे तो ऐशियां करनी है हमने जन्नत में जाके। एक गोरा है, एक मुल्हिद है, उसको नहीं पता, वो कहता है कि यार बस यही जिंदगी है जो है, इसको वर्थ वाइल बनाओ, अपने टाइम की कदर करो, इस टाइम को सेव करो। वो सुबह अर्ली मॉर्निंग उठते हैं, जोर से पहले सारे काम कर लेते हैं, हम जोर में उठ रहे होते हैं। तो ये एक मिजाज होता है इसका, ठीक है। तो वापस चलते हैं, मैं आपको सेमरश का अकाउंट हम क्रिएट कर रहे थे, ठीक है। तो सेमरश का अकाउंट ये क्रिएट हो गया है। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आप देखें, इधर मेरे पास कीवर्ड मैजिक टूल है। तो मैं कीवर्ड मैजिक टूल में जाऊंगा। कीवर्ड मैजिक टूल मैं इस्तेमाल तब करता हूं जब मुझे नहीं पता कि लोग क्या लिख के सर्च करें। मुझे इतना पता है, मैं एक अंदाजा लगाऊंगा, मुझे इतना पता है कि मैं एक अंदाजा लगाऊंगा कि अगर कोई यूएई के अंदर कोई बंदा मौजूद है या यूएई के अंदर एक बंदा मौजूद है, वो जाके गूगल पे क्या लिखेगा अगर उसको राइडर की जॉब चाहिए। वो गूगल पे जाके कुछ ना कुछ तो लिखता होगा ना। तो क्या लिखता होगा? मैं यहां पे अगर कंट्री सेलेक्ट कर लेता हूं यूएस की बजाय यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, और यहां पे मैं राइडर जॉब लिख लेता हूं। एक सादा सा कीवर्ड है राइडर जॉब। अगर मैं इसको सर्च करता हूं तो देखते हैं कौन सा कीवर्ड आता है और उसका वॉल्यूम कितना है। अच्छा, एक कीवर्ड मेरे पास आया है बाइक राइडर जॉब्स दुबई, इसके 1000 वॉल्यूम है, यानी कि 1000 बंदा हर महीने आके इस कीवर्ड को सर्च करता है। दूसरा कीवर्ड है बाइक राइडर जॉब्स इन दुबई, इसके 1000, इसके भी 1000 हैं। तीसरा कीवर्ड है बाइक राइडर जॉब, इसके 390 हैं। चौथा कीवर्ड है बाइक राइडर जॉब्स इन यूएई, इसके 260 हैं। अब ये वो कीवर्ड्स हैं जो कि यूएई के अंदर एक बंदा अरब अमारात के अंदर, दुबई के अंदर बैठ के, शारजा के अंदर, जिस भी वहां पे बैठ के, वो एक बंदा वहां बैठ के ये वाली चीज सर्च करता है। अब मैं ये देखना चाहता हूं कि ये जो कीवर्ड बंदा लिखता है बाइक राइडर जॉब्स दुबई, इस पे ये जो 1000 बंदा आ रहा है, ये जा किधर रहे हैं? अच्छा, यहां पे ना सीधे हाथ पे एक सीपीसी नजर आ रहा है, कॉस्ट पर क्लिक, सीपीसी, यानी कि बाइक राइडर जॉब इन दुबई, इसका सीपीसी है $0.06, $0.06। ये कितना बनता है? इसको मैं जरा यूएसडी टू पीकेआर करता हूं, यूएसडी टू पीकेआर। मैं इसका डॉलर को पाकिस्तानी रुपये में कन्वर्ट कर, 0.06। तो ये कितना बना? सॉरी, 0.06। ये सिर्फ 16.87 रुपए बने, यानी कि 17 रुपए बने। 17 रुपए का एक क्लिक पड़ रहा है। तो ये इसका मतलब क्या है? ये सीपीसी, ये जो पहला कीवर्ड है बाइक राइडर जॉब इन दुबई, ठीक है, इसको मैं यहां पे, इसका सीपीसी $0.06 है, यानी कि 17 रुपए है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो फाइवर के ऊपर जाके ये जो लोग सर्च कर रहे थे ना, सर्च इंजन मार्केटिंग, ये सर्च इंजन मार्केटिंग, कि कोई भी बंदा अगर यूएई से बाइक राइडर इन दुबई लिख के सर्च करेगा तो मेरा ऐड पहले आ जाए। अब उसको ऐड शो हो जाएगा, जब उस पर वो क्लिक करेगा मेरे 17 रुपए कट जाएंगे, लेकिन मुझे वो बंदा मिल जाएगा। वो बंदा मेरी वेबसाइट पे आ जाएगा। उस वेबसाइट पे आके मैं उसको कहूंगा कि भाई हम आपको 150cc बाइक देंगे, हम आपको सिम देंगे, हम आपको सिम का वीकली पैकेज भी देंगे, और हम आपको 250 दिरहम जो है वो हम आपसे चार्ज करेंगे, आपकी फीस, उसके अलावा जितने भी होंगे वो आपके होंगे, मिसाल के तौर पे। तो ये उसको बेनिफिट नजर आ रहे होंगे और वो वहां पे फटाफट अप्लाई करेगा, फॉर्म फिल करेगा और मेरा काम हो जाएगा। मुझे 17 रुपए का वो बंदा पड़ा, 17 रुपीज का। तो वो जो 1000 बंदा है, वो 1000 बंदे को मैंने फौरन कैप्चर कर लिया। समझ आई है ना बात? एक इंटरेस्टिंग तरीका है ना। अब आपको सर्च इंजन मार्केटिंग आनी चाहिए, गूगल पे ऐड लगाना आपको आना चाहिए कि गूगल पे मैं किस तरीके से ऐड लगाऊं कि अगर यूएई से, अरब अमारात से कोई बंदा ये वाली चीज लिखे तो मेरा ऐड सबसे ऊपर आए, और जब वो उस पर क्लिक करेगा तो 17 रुपए मेरे कट जाएं मेरे अकाउंट से, लेकिन वो बंदा मेरी वेबसाइट पे चला जाए और वहां पे मेरा फॉर्म लगा होगा, वो उसको फिल करेगा, सारी चीजें पढ़ेगा और मुझे वो बंदा मिल जाएगा। इस तरीके से ये स्मार्ट काम होता है, इस तरीके से ये इंटरेस्टिंग तरीके से ये काम होता है। ठीक है, तो अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं, इस कीवर्ड के ऊपर, मैं देखना चाहता हूं कि ये 1000 बंदा फिल वक्त कहां जा रहा है, ये 1000 बंदा आगे जा किधर रहा है।
ٹھیک ہے, تو اس کا کیا سین ہے. تو میں یہاں پہ اس کو اسکرول کرتا ہوں تو یہ دیکھیں سب سے پہلے نمبر پہ Indeed.com. انڈیڈ ایک ویب سائٹ ہے. انڈیڈ سب سے پہلے نمبر پہ, اس 1000 میں سے سب سے زیادہ لوگ انڈیڈ پہ جا رہے ہیں. بائک رائڈر دبئی جابز. انڈیڈ کیا ہے؟ انڈیڈ کو اگر میں کھول کے دیکھوں, آپ میں سے کئی لوگوں کو انڈیڈ کی ویب سائٹ کا پتا ہوگا, نہیں تو آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا. یہ جاب کی ویب سائٹ ہے, یہاں پہ جاب ملتی ہے. پاکستان میں بھی اگر آپ کو نوکری چاہیے تو آپ انڈیڈ پہ جا کے بھی اپنی سی وی سبمٹ کروا رہے ہوتے ہیں مختلف کمپنیوں کو. تو میں اگر UAE کی, عرب امارات کی انڈیڈ, پاکستان کی بھی انڈیڈ ویب سائٹ ہے, امریکہ کی بھی انڈیڈ ویب سائٹ ہے, اور UAE کی بھی انڈیڈ ویب سائٹ ہے. تو میں اگر UAE کی انڈیڈ ویب سائٹ پہ جا کے اپنی جاب پوسٹ کرنا شروع کر دوں رائڈرز کی, میں وہاں پہ جاب لگا دوں کہ بھائی مجھے رائڈرز چاہیے اور میں اپنے رائڈرز کو یہ بینیفٹس دے رہا ہوں, میں اس کو بائک بھی دوں گا, میں اس کو سم بھی دوں گا, میں اس کو پیکج بھی کروا کے دوں گا, اور میں اسے جو ہفتے کی فیس ہے وہ اتنے درہم میں لوں گا. تو سب سے مختلف, سب سے اچھے پیکج اگر میں دینا شروع کر دوں تو کیا خیال ہے اگر ہر مہینے 1000 بندہ یہ چیز سرچ کر رہا ہے اور میں اپنے سارے کمپیٹیٹرز ان سب سے اچھے پیکج اگر میں دے رہا ہوں تو کیا خیال ہے 1000 میں سے میں کہتا ہوں اس کا صرف 20 بندے بھی کہہ لوں, میں مہینے کے 20 بندے بھی میں کہہ لوں, یا مہینے کے 50 بندے بھی کہہ لوں, یا اس کا 10% کہہ لیں کہ میں صرف اس کا 100 بندے بھی اگر میں اپنے نکال لیتا ہوں تو 100 رائٹرز تھوڑا تو نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ تو یہ نا دوسرے نمبر پہ ویب سائٹ ہے Naukri-Gulf.com. یہ بھی تو اس کا مطلب میں اپنے کلائنٹ کو ایک چیز پہلے نمبر پہ پتہ کیا کہوں گا کہ سر جی آپ مجھے ہائر کریں, پہلا کام, اور دوسرا کام میرا یہ ہوگا کہ میں انڈیڈ پہ جا کے اور Naukri-Gulf پہ جا کے آپ کی جاب پوسٹنگ کروں گا. اب یہ آئیڈیا میرے مائنڈ میں تو پہلے نہیں تھا, لیکن مجھے سیمرش کی ریسرچ سے پتا چلا کہ اچھا یہ 1000 بندہ جو ہے یہ والا کی ورڈ لکھا ہے ان ویب سائٹوں پہ جا رہا ہے, تو جب یہ ویب سائٹیں کھولیں گے تو وہاں پہ میری دکان بھی نظر آنی چاہیے. مجھے اگر پتا چل جائے کہ یہ جو خریدار ہے یہ فلاں مارکیٹ میں جا رہا ہے, اگر میں اس مارکیٹ میں جا کے اپنا ٹھیلا لگا لیتا ہوں تو میرے ٹھیلے پہ اس کی نظر پڑ جائے گی. اب میرے ٹھیلے کا کمال ہے کہ وہاں پہ اچھی پروڈکٹس خوبصورت طریقے سے لگی ہونی چاہیے تاکہ وہ اس کی نظر اس پہ پڑے اور وہ آ کے خریداری کر لے. اسی طریقے سے انڈیڈ اور Naukri-Gulf.com ویب سائٹ پہ جا کے میری آفر اتنی اچھی ہونی چاہیے باقیوں کی نسبت کہ وہ آ کے یہاں سے بائی کر لے. تیسرے نمبر پہ فیس بک کا ایک گروپ ہے. یہ کون سا گروپ ہے؟ اگر میں اس کو کلک کرتا ہوں, یہ کون سا گروپ ہے؟ اس گروپ کا نام کیا ہے سر دیکھتے ہیں ذرا. اس گروپ کا نام ہے بائک رائڈر جابز ان دبئی, جس کے 27,400 ممبرز ہیں. تو یہاں مجھے یہ پتا چلا, یہ دیکھیں یہ لوگ مختلف یہاں پہ بائک رائڈرز جاب یہ پوسٹ کر رہے ہیں. وی آر ہائرنگ آئی نیڈ اے بائک رائڈر جاب. میرے پاس دبئی بائک رائڈر لائسنس بھی ہے اور یہ میرا نمبر ہے, اس پہ مجھے بائک رائڈر کی جاب چاہیے, مجھے رابطہ کریں. پھر یہ بندہ ہے مجھے کہہ رہا ہے مجھے بائک چاہیے, جاب چاہیے, میرا یہ نمبر ہے. یہاں پہ بہت زیادہ لوگ ہیں. تو میں اگر اس گروپ کے اندر اپنی ایکٹیویٹی کرنا شروع کر دوں, میں اگر اس گروپ کے اندر جس طرح یہ ہے وی آر ہائرنگ رائڈرز آؤٹ سائڈ پاکستانی UAE لائسنس ہولڈر, مطلب میں اگر اچھے پوسٹر بنا کے اچھی آفرز یہاں پہ ڈال دوں تو کیا خیال ہے مجھے کسٹمر آئے گا یا نہیں آئے گا؟ یہ مجھے پتا چلا کہ اچھا یہ تیسرے نمبر پہ اس کی ورڈ سے سب سے زیادہ اس گروپ کے اندر جا رہا ہے. پھر گلاس ڈور ویب سائٹ ہے چوتھے نمبر پہ, پانچویں نمبر پہ. مطلب آپ کو صرف ایک کی ورڈ سے یہ آئیڈیا ہو گیا, ٹھیک ہے, ایک کی ورڈ سے یہ آئیڈیا ہو گیا کہ مجھے میری اسٹریٹجی, میری حکمت عملی کیا ہونی چاہیے. کس ٹول کو استعمال کر کے؟ سیمرش کو استعمال کر کے. صرف سیمرش کا ٹول استعمال کیا آپ نے, ٹھیک ہے, صرف سیمرش کا ٹول استعمال کیا. تو یہ میرے خیال ہے آپ لوگوں کو تھوڑا سا سوچنا, اسٹریٹجی بنانا اور یہ طریقہ آئے گا. کیونکہ دیکھیں کلائنٹس کو وہ لوگ چاہیے جو سوچ سکیں. کلائنٹ کو وہ سمپل ویب سائٹ ڈیزائنر, کلائنٹ کو سمپل سوشل میڈیا مارکیٹر, کلائنٹ کو سمپل سرچ انجن مارکیٹر نہیں چاہیے جو کہ صرف ایڈ چلائے. مجھے اگر پتا ہے نا کہ میری یہ اسٹریٹجی ہے تو میں پہلے نمبر پہ کیا میرا اسکل آتا ہے کہ میں انڈیڈ پہ جا کے یا Naukri-Gulf پہ جا کے میں لسٹنگ کریٹ کروں اپنی جاب کی. دوسرے نمبر پہ فیس بک گروپ ہے تو اس فیس بک گروپ کے اندر میں اچھے پوسٹر ڈیزائن کر کے وہاں پہ ایکٹیویٹی کروں. اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے کینوا کی ڈیزائننگ آنی چاہیے اور مجھے ساتھ ساتھ تھوڑا بہت فیس بک کے اوپر پوسٹ لگانا بھی آنا چاہیے, فیس بک کا بھی مجھے استعمال آنا چاہیے. تیسرے نمبر پہ 17 روپے دے کے میں انہیں 1000 لوگوں کو شروع میں ہی کیپچر کر سکتا ہوں, شروع میں ہی,
ठीक है, मैं ना नौकरी, मैं उनको उस जगह पे जाने ही ना दूं। ये समझ लें कि यूं समझें कि मैं मार्केट के दरवाजे पे अगर अपना ठेला लगा लूं तो मैं हो सकता है शुरू में ही इनको कैप्चर कर लूं। तो इसका मतलब यह है कि मुझे वेबसाइट डिजाइनिंग आनी चाहिए ताकि मैं अच्छी सी अपनी वेबसाइट बना सकूं। अगर क्लाइंट की वेबसाइट नहीं है तो मैं उसे कहूंगा कि सर आपकी वेबसाइट बनाते हैं, वो वेबसाइट आपको इतना चार्ज कर। हमने एग्जैक्टली ऐसे ही किया था, हमने क्लाइंट की वेबसाइट थी ही नहीं, हमने उनको पिच किया कि सर आपकी वेबसाइट भी बनाते हैं, हमने उनकी वेबसाइट को चार्ज किया। ठीक है, वेबसाइट बनाना भी आ गया, दूसरे नंबर पे ऐड चलाना, तो गूगल एड्स के भी आप अलग से चार्जेस अपने ले लें कि सर जी हम आपकी सर्च इंजन मार्केटिंग करेंगे, तो सर्च इंजन मार्केटिंग से हम ये वाले कीवर्ड्स टारगेट करेंगे और उससे ये वाली ट्रैफिक हम कैप्चर करेंगे और आपकी वेबसाइट पे लेके आएंगे। सो देखें, ये सारे टूल्स हैं। लोग हमेशा ना स्किल के पीछे भाग रहे होते हैं। आप में से बहुत सारे लोग इस टाइम ये कह रहे होंगे कि सर जी ये बटन दबाना सिखाएं, बटन दबाना सिखाएं, ये करना है। भाई ये बटन दबाना सीखना एक सेकेंडरी स्किल है, 20% चीज़ है। 80% आपके कम्युनिकेशन है, 80% आपकी सोच है कि आपने उसको सोल्यूशन क्या प्रोवाइड करना है, उसको हल क्या देना है, सोचना है। एक कारोबार है, एक कारोबार है, बिजनेस है, वो यूएई के अंदर वो बिजनेस चला रहा है बंदा, उसको राइडर चाहिए, उसने करीम को राइडर देना है, उसने उबर को राइडर देना है, उसने वहां पे जो जिन जिन कंपनियों के साथ उसका एग्रीमेंट है उसको उसने राइडर सप्लाई करना है। अब वो राइडर मार्केट में मौजूद है जो जिनको जॉब चाहिए, आपने उन दोनों को आपस में ब्रिज करना है। कैसे करेंगे, ये इसका जवाब आपने देना है। तो ये सिंपल मतलब हम इस तरह की मतलब आप जब प्रैक्टिसेस करेंगे इंशाल्लाह, मैं आपको केस स्टडीज भी इस तरह की बताऊंगा आहिस्ता आहिस्ता, तो आपको इंशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से ये चीज़ें समझ लग जाएंगी। लेकिन आपको सोचना आना चाहिए, आपको अगले बंदे को सोल्यूशन देना आना चाहिए। अब हमने अगर बेशक आप लोग इससे पहले यूएई की मार्केट के अंदर काम नहीं किया या इस तरह का कोई सीन है तो वो चीज़ हो जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है, तो हसन खटक, आप जो चीज़ हो रही है उस पर फोकस करें। तो ये वो स्किल है जो कि आपको शॉपिफाई नहीं सिखाएगा। ठीक है, अच्छा चलें, उसके बाद हम थोड़ा सा आगे और चलते हैं। ठीक है, लेट मी शेयर स्क्रीन अगेन। तो 10:15 पे हम इंशाल्लाह अपने गेस्ट का सेशन करेंगे, तो वहाँ पे हम अपने शॉपिफाई को रिज्यूम करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, एक केस स्टडी के साथ हम डिटेल में चीज़ों को पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे सोशल मीडिया मार्केटिंग वाला स्किल आ गया। जो आप लोगों को पता है सोशल मीडिया मार्केटिंग जो होती है, फेसबुक पे ऐड चलाना, इंस्टाग्राम पे ऐड चलाना, ये सारा इसके अंदर आ जाता है। अच्छा, फेसबुक की ऐड कैंपेन की अलहदा भी एक है, इंस्टाग्राम मार्केटिंग अलहदा भी है। ठीक है, तो आप इंस्टाग्राम मार्केटिंग के ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको 71,000 प्लस ऐसे फ्रीलांसर मिलेंगे जो इंस्टाग्राम की मार्केटिंग कर रहे हैं। आप इनमें से हर एक को खोल के देखेंगे, हर एक के पास प्रोजेक्ट होगा, हर एक के पास काम होगा, हर एक के पास रिस्क आ रहा है, हर एक कमा रहा है। ठीक है, तो ऐसी बात नहीं है कि 71,000 प्लस बंदा है तो मुझे कैसे स्पेस मिलेगी। आपको इंशाल्लाह मिल जाएगी स्पेस। फाइवर पे आपको काम करने का तरीका सलीका आना चाहिए, वो अगर आपको आता है तो आप इंशाल्लाह वो काम कर सकते हैं। ठीक है, गूगल सर्च इंजन मार्केटिंग है, जो गूगल के ऊपर जो भी मैंने आपको बताया कीवर्ड के ऊपर कैसे लगाया जाता है। शॉपिफाई मार्केटिंग कि अगर आपकी शॉपिफाई की वेबसाइट है तो मैंने उसके बिहाफ पे मैं ऐड चलाऊंगा। तो शॉपिफाई मार्केटिंग के अंदर क्या आएगा, शॉपिफाई मार्केटिंग के अंदर फेसबुक एड्स भी आ जाएंगे, इंस्टाग्राम एड्स भी आ जाएंगे, गूगल एड्स भी आ जाएंगे, यूट्यूब एड्स भी आ जाएंगे, सारा कुछ आ जाएगा। तो ये चीज़ हम कर लेंगे। ठीक है, अच्छा ये देखें यहाँ पे अब आपके पास बुक मार्केटिंग भी है। लोग अक्सर किताबें लिखते हैं तो उसको अब मैंने किताब लिख लिया है, बुक मैंने लिख लिया, अब उसको मैंने मार्केट करना है, तो वो कैसे होगी, ये भी एक पूरा स्किल है। ठीक है, हम में से अक्सर तो किताबें पढ़ने से हमारा शगफ ही नहीं होता और कोई चीज़ें इस तरह की होती नहीं है। फिर ये वीडियो एडिटिंग के अंदर आ जाए, वीडियो एडिटिंग के अंदर बहुत ज़्यादा इस तरीके से एनिमेशन फॉर किड्स आ रहा है, बहुत कुछ है इसके अंदर। ठीक है, वाइट बोर्ड एनिमेशन आप लोगों ने अक्सर ये एनिमेटेड एक्सप्लेनर्स या वाइट बोर्ड एनिमेशन ये आप लोगों ने बहुत सुने होंगे, बहुत देखे भी होंगे। ठीक है, इवन के ये बुक राइटिंग, बुक एडिटिंग, ये सारी चीज़ आ जाती है। ठीक है, और बिजनेस के अंदर यहाँ पे अगर आप आएँ तो बिजनेस के अंदर यहाँ पे लेट मी जूम। अच्छा, तो बिजनेस के अंदर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास वर्चुअल असिस्टेंट है और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है। आज की क्लास में इंशाल्लाह आप लोगों को ये भी चीज़ आप लोग सीखेंगे कि एक पूरा बिजनेस मैनेज कैसे किया जाता है। अगर आप खुद से अपना बिजनेस नहीं करना चाहते और आप चाहते हैं कि आप किसी बिजनेस को सर्विसेज दें, उसकी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करें, उस बिजनेस को A to Z पूरा हैंडल करें, मैनेज करें, तो वो भी इंशाल्लाह आप आज की क्लास में ये जो 10:15 पे हमारा सेशन स्टार्ट होगा उसमें इंशाल्लाह आप लोग सीख लेंगे। ठीक है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन क्या चीज़ होती है? सप्लाई चेन ये होती है कि एक ऑर्डर आ गया है, उस ऑर्डर को पैक मैंने करना है। ठीक है,
पैक करके उसको कुरियर कंपनी को भेजा, फिर उसको ट्रैक करना है कि अच्छा वो कुरियर कंपनी सही तरीके से पहुंचा रही है, टाइम पे पहुंचा रही है, कस्टमर को डिलीवर हो रहा है टाइम पे या नहीं हो रहा, कस्टमर घर पे नहीं है या कस्टमर कॉल नहीं उठा रहा, तो उसको फिर कस्टमर सपोर्ट वाली टीम को बताना कि भाई ये कस्टमर ने एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया है, या कस्टमर घर पे नहीं था, या कस्टमर फ़ोन नहीं उठा रहा, तो ये कुरियर कंपनी के साथ आप राब्ते में करके दोबारा इसको करवाएं। तो ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर ये चीज़ होती है। फिर जब अगर कस्टमर को कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको हैंडल करना ऑर्डर के अंदर, तो ये चीज़ें इसके अंदर शामिल होती हैं। तो उसके ऊपर भी आज की क्लास में हम इंशाल्लाह बात करेंगे। बिजनेस कंसल्टिंग, जो आप मुझसे सवाल पूछते हैं, ठीक है, जो आप मिस सिद्रा से सवाल पूछ रहे थे, फ़हीम साहब से सवाल पूछ रहे थे, उस्मान साहब से सवाल पूछ रहे थे, तो ये जितने भी लोग हैं ये सब बिजनेस कंसल्टिंग कर रहे हैं। आप लोग भी कर सकते हो अगर आप लोगों का एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस इसके अंदर इंशाल्लाह आ जाता है, और आप लोग किसी के कारोबार के ऊपर अगर काम करते हो या अपना कारोबार करते हो तो उसके ऊपर इंशाल्लाह आप ये बिजनेस कंसल्टिंग फील्ड के अंदर आ रहे हो। इसमें सिर्फ आपने लोगों को कंसल्ट करना है, लोगों को मशवरे देने हैं, अपने एक्सपीरियंस की बेस पे लोग करेंगे, उससे आपका मजीद एक्सपीरियंस ग्रो होगा। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त काम है। मार्केट रिसर्च, जिस तरीके से मैंने अभी देखा कि राइडर्स का सबसे ज़्यादा राइडर्स की जॉब कहाँ पे होती हैं, ठीक है, तो मैंने यूएई के अंदर देखा, यूएई के अंदर अच्छा था। मैं अगर बाकी किसी कंट्री के अंदर भी सर्च करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं राइडर जॉब्स का अगर कीवर्ड लिखता हूँ, ठीक है, फॉर एग्जांपल देखें मैं सेमरश पे जाता हूँ, यहाँ पे सेमरश पे जाके मैं यहाँ पे एक लफ्ज़, ये कीवर्ड ओवरव्यू, ये कीवर्ड ओवरव्यू में जाता हूँ, ठीक है, कीवर्ड ओवरव्यू में, ठीक है, कीवर्ड ओवरव्यू में जाके मैं यहाँ पे ये राइडर जॉब्स, अब ये देखें राइडर्स जॉब इन बाइक राइडर जॉब्स दुबई वाला जो कीवर्ड था, अच्छा, तो बाइक राइडर का जो कीवर्ड था वो भी था इंशाल्लाह। तो अभी हम थोड़ा सा एक ब्रेक ले लेते हैं क्लास में, ठीक है, 10-15 तक। तो मैं फिर आप लोगों को, हम जब ई कॉमर्स का हमारा सेशन स्टार्ट होगा हमारे गेस्ट स्पीकर के साथ, तो इंशाल्लाह उस पर फिर हम इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो 10-15 तक एक छोटा सा ब्रेक है और उसके बाद फिर हम करते हैं। तो मीनवाइल हम थोड़ा सा टेक्निकल यहाँ पे कुछ सेटअप हमने करना है, तो टेक्निकल चीज़ें हम थोड़ी सी सेटअप कर लें, तो इंशाल्लाह मीनवाइल हमारे 10-15 तक गेस्ट आ जाएंगे। तो इधर उधर भागना नहीं है, ठीक है, इधर ही रहना है। तो लेट्स वी विल रिज्यूम इंशाल्लाह, ठीक है। सो